Hi everyone, I'm Devanshi and these are some last minute tips for people who are appearing in the DNB exit exam on 24th April. So it's just 2 days to go. So 23rd को I guess आप लोग पेपर 1 के टॉपिक्स ही पढ़ेंगे. So I want to give the answer of कि अब कल क्या पढ़ें या if at this point of time if you are studying. So what you have to make sure is do a quick revision of the 3 sessions, last 3 sessions के जितने भी topics हैं, not the question, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली रिपीट नहीं होता, टॉपिक रिपीट होता है. तो आपको लास्ट 3 सेशंस के जितने भी टॉपिक्स हैं 20 दो 60 टॉपिक्स, यू हैव टू क्विकली रिवाइज देम. You can revise, if I give you an idea, you can revise from online PPTs. That's a very good way of revising quickly, because some people have made amazing PPTs of some high yield topics which is there on Google. It's on, you can do slide share, or also there is a site called Slide Player. So that you have to do revision, quick revision, and if you have made that list, or if you have not, just make a list of those topics which have been some way or the other they have been asked at least 5 times in the last 10 years. उनकी list बना के do a quick revision of them. So this is for tomorrow. Then day after tomorrow definitely you will do paper 1 topics. And also अगर आपको last 3 years की PDF चाहिए, so back I think in last year when I was giving this exam, I did I think Dr. Narendra Maurya is sir's name. Dr. Narendra Maurya sir की PDF आती है जो कि जिसमें लास्ट 3 years के पेपर्स बेसिकली सॉल्व पेपर्स होते हैं. सो यू कैन ऑल्सो रेफर टू सम लास्ट 3 years सॉल्व पेपर्स PDF, or you can search on Telegram or your friends. Okay, but just do last 3 sessions. So this was the preparation part. Okay, where somewhere you have to draw the line na. At this point of time you can't read everything. So now this was the preparation thing. Then now the execution part. So for execution I would like to say that negative marking के zone से बाहर आ जाइए. The person who will write fast and the person who will write more, जो ज़्यादा लिखेगा, फास्ट लिखेगा, टाइम का ध्यान रख के लिखेगा, he will be the winner. Okay, this is what you have to, this is basically the most important thing of this video. Like honestly if I say, because execution part में सबसे ज़्यादा pitfalls if I would tell you ना कि failure के chances mostly execution में ही होते हैं. So write fast, write more elaborate answers. And one rule I want to tell you guys, 7 questions in 1 hour. ये रूल बना के अपने दिमाग में लेके जाइए. 7 questions in 1 hour, because 20 questions होते हैं. So 7 questions in 1 hour आपको करने ही करने हैं. So regulate your speed accordingly. Okay, because speed is the rate limiting thing in this. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को पेपर छूटने की आती है कि हमारा पेपर छूट गया, हमारे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन छूट गए. मेरे भी पेपर 1 में आई थिंक 1-2 पार्ट्स मेरे छूट गए थे, सच में छूट गए थे. मतलब बिकॉज पेपर 1 में यू डोंट नो दिस ना, नए क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि अरे मैं ये पढ़ के नहीं आया. बट इस एग्ज़ाम में आपको अपने फर्स्ट ईयर MBBS से लेके अभी तक की सारी नॉलेज आपको इसमें लगानी है. ठीक है. राइट elaborate आंसर्स का मतलब क्या है कि इवन इफ दे हैव आस्क्ड यू कॉजेज़ या ओनली डायग्नोसिस या ओनली अप्रोच, ओनली मैनेजमेंट, डेफिनेटली राइट फर्स्ट, राइट इन द सेंटर व्हाट दे हैव आस्क्ड. बट उसके बाद उसको जितना एलैबोरेट कर सकते हो आप उतना एलैबोरेट कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ मिस्ट्री. नोबडी नोज दैट वाई हाउ DNB पीपल आर इवैल्यूएटिंग आवर आंसर्स. तो किस टाइप का आंसर लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, दिस नोबडी नोज, वो आपको कोई नहीं बता सकता. तो इसलिए आई थिंक जितना ज़्यादा आप हेडिंग्स को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आप उतने ज़्यादा हेडिंग्स को शॉर्ट में जस्ट इन्वॉल्व, ज़्यादा इंक्लूसिव आंसर्स लिखने हैं अपने को. और ये ब्लंडर्स नहीं करना है. सेकंड पॉइंट कि आपने दूसरा जहाँ पे स्पेसिफाइड कुछ और क्वेश्चन था, कुछ और उसमें लिखा था आंसर टू क्वेश्चन 2, आपने गलती से क्वेश्चन 3 अटैम्प्ट कर दिया वहाँ पे, तो आपका 2 और 3 आई थिंक सो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. ऐसा होता है, राइट. So this was it guys. Attempt in order as much as you can. ऑर्डर में ही अटैम्प्ट करना, क्योंकि अगर आप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे सो यू नेवर नो, यू माइट नॉट बी एबल टू कम बैक टू दैट क्वेश्चन, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होता है यार, स्पीड का ही प्रॉब्लम होता है मेनली. तो इसलिए आपको कोई टॉपिक अगर रिकॉल नहीं हो रहा है उस टाइम पे, तो एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि यू सिर्फ डेफिनेशन कॉजेज़ लिख के आप आगे बढ़ जाइए. बट एक बार जस्ट फिल दैट पेज. किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ के आगे मत निकलना. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. अपन लोग क्या करते हैं ना, जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा आता है वी टेंड टू अटेम्प्ट इट फर्स्ट.
बट आई रियली फील कि क्योंकि सारे क्वेश्चंस को इक्वली आंसर करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं, बिकॉज यू डोंट नो ना कि वो किस में ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं. सो जस्ट अटेम्प्ट इन ऑर्डर एंड जस्ट फर्स्ट ईयर MBBS से अभी तक तुमको जो भी आता है, राइट मोर एंड राइट फास्ट. आई मीन दिस इज़ वॉट आई फील. सो ऑल द बेस्ट. बी माइंडफुल, बी काम, डोंट ओवर एग्जॉस्ट योर सेल्फ. और अब पोमोडोरो टेक्निक से आप पढ़ोगे ना, वो टाइमर लगा के जो पढ़ते हैं, इसका कॉन्सेप्ट होता है कि एक बार इंटेंस रीडिंग करी विद लाइक मैक्सिमम फोकस, चाहे वो आप आधे घंटे की करो, 1 घंटे की करो, 2 घंटे की करो, बट जस्ट देन टेक अ ब्रेक. एंड ब्रेक ले रहे हो तो ब्रेक का मतलब होता है कि जस्ट गो आउट, चेंज योर सराउंडिंग्स, चेंज वॉट यू आर डूइंग, मेक अ सिग्निफिकेंट चेंज. दैट इज़ अ ब्रेक. ब्रेक का मतलब ये नहीं होता कि आप वहीं बैठे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं फ़ोन पे. आई फील दैट अ गुड ब्रेक इज़ दैट यू गो आउट, talk to your mama or your friend or sister, and just change your place, change your air. I mean, that would be a good, because don't over exhaust yourself. At one point of time we revise so much, we study so much that we get over exhausted. So pomodoro reading आप कर सकते हैं. And just remember guys that nobody is asking you, nobody wants that you should know everything. Just you should know how to attempt everything. आपको attempt करना आना चाहिए. Even if you haven't read that topic, try and write as much as elaborate answers you can. Okay, write more and write fast. 7 questions in 1 hour rule. Okay, what did I do? 7 questions in 1 hour rule. This should be your target. Okay, eyes on the timer on the screen. So all the best, be relaxed, okay, be mindful, be calm, and you will do really well. Okay, if you are cool enough and you have your eyes on the timer. All the best.